I'm recalling again, right? First of all, right, chapter second is your matter. What is matter? Anything that occupies space and has mass is known as matter. Matter yani a substance. They are divided in two types: pure substance and impure substance. Pure substance are those which are made up of only one kind of particles, right? And impure are those which are made up of two or more kinds of particles. They are mixed together, right? Then, right, this was the name is mixture. And pure substance, they are classified into two types: elements and compound, right? Elements, they are further divided into how many types? Four types, right? Metals, non-metals, metalloids, and noble gases, right? Compound, compound, they are not classified, right? Simple, they are, right? They are made from elements. And mixture, they are classified into homogeneous and heterogeneous. So today we will start. Our first topic is on element, right? We will start on element. Any problem here till now, class? ठीक है now. Element, this you have done earlier in earlier classes. You know about the elements, right? You know something about elements. What are elements? Right? Elements are those split. Right? The definition: elements are, right? You will write the definition. Elements are pure substance. Are pure. Elements क्या होते हैं? They are the pure substance which cannot be split. Which cannot be split, or कहेंगे break भी आता, right? The word break. Which cannot be split or break into simpler substance. Into two or more simpler substance. Into two or more simpler substance. Two or more simpler substance by any chemical means. By any chemical means. Chemical means मतलब any chemical method, by burning, by hammering, anything, right? These are. तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? दे आर द प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी ब्रेक. उनका आगे नहीं तोड़ सकते. वी कैन नॉट ब्रेक इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस बाय एनी मेथड. गॉट इट? चाहे यू आर अप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी, यू आर अप्लाइंग बर्निंग प्रोसेस, यू आर अप्लाइंग एनी प्रोसेस, you cannot break. It is clear, class? Very important, right? The element क्या होता है? They are the pure substance, right? Element, they are the pure substance and they cannot be split. We cannot split element into two or more particles or simpler substance, right, class? Right. Now you know the example of elements. You have done hydrogen, you have studied hydrogen, oxygen, these are the, right? Nitrogen, gold, right? Aluminium. Listen, not remember one who is saying carbon dioxide, this is not element, right? It is a compound made up of two, oxygen and carbon से मिलके बना है. This is compound. एलिमेंट क्या होता है? राइट, एलिमेंट दे आर मेड, दे आर सिंगल. हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन, और सिंगल एलिमेंट. कार्बन इज योर आंसर. कार्बन हो गया, राइट? कार्बन इज योर, राइट? कार्बन हो गया, राइट? आयरन हो गया, राइट? दिस इज आयरन हो गया. एल्यूमिनियम, गोल्ड, कॉपर, मरकरी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, Mg, right? Mn, manganese, right? Sodium. These are all, these are many elements, right? So in overall, how many elements are there? Right? Have you seen periodic table? It was your holiday homework also. Total elements are 180 elements. Wait a minute, let me show you periodic table. Able to see, class, all of you? It is clear, right?
there are total here 118 elements. Total there are 118 elements. Got it? Right? Up you can see here this is known as long form of periodic table. This is known as long form of periodic table. Got it? This you will study in class 10th about periodic table whole. But you should remember that this is periodic table. These are our elements. These are all known as elements. Elements, they are classified into 4 types, right? Metals, non-metals, metalloids, and noble gases. So here you can see in this there are 118. ये अगर यहाँ पर you can check it here. This is 118, the last element here. Got it? This is the last one. So there are 118 elements, and in 118 element there are 78% are your metal. इसमें आपके 78% कौन होते हैं? These are your metals. Got it? 78% are metals. Right? अब metals कौन कौन से हैं? देखो from here on the left hand side, left side की तरफ periodic में all are your metals. ये सब क्या हैं? Right? ये iron, cobalt, nickel, zinc, vanadium, magnesium, beryllium, hydrogen, lithium, all are your metals. These are known as metals. Got it? On the right hand side, right? If you see the right side on this one, the right side here, these are non-metals. ये जो this is pink color, ये आपके non-metals हैं. Able to see here pink color part? Carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, chlorine, bromine, all are non-metals. These are your non-metals हो गया. And here you can see noble gases, the last one. The last line you can see helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, all are known as noble gases. These noble gases, clear? And here some are just here you can see there are आपके metalloids हैं. Metalloid कौन कौन से which behave both as metal and non-metal. जैसे आपका right silicon, arsenic, right germanium. ये जो part है इधर के elements हैं, they are metalloids. Metalloids क्या होते हैं? Which behave as both metals and non-metal. यानी वो दोनों तरफ behave करते हैं आपके. So got it? This is your periodic table. Right class? And one more thing. Here you can see at the bottom there are 2 boxes here. Right? ये box अलग नहीं है. अगर आप notice करोगे तो ये box कहाँ से रखे हैं? You can see here. Able to see the number 57 से लेकर 71. Right? और 89 से 103. तो ये सारे एलिमेंट इसकी यहाँ पर आएंगे आपके, तो उनके लिए अलग से रखा हुआ है. एंड दीज आर नोन एज द अपर वन इज नोन एज लेंथेनाइट और नीचे वाले एक्टिनाइट बोलते हैं. ठीक है, अभी सिंपल यू रिमेंबर द नेम ओनली. राइट? और ये नीचे द बिलो वन दे आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. दे आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. तो दिस इज क्लियर. एलिमेंट्स. राइट? हाउ मेनी एलिमेंट्स we are having? 80. And 78% are 78 metals. ठीक है now. Right? तो classification पर right? Element they are classified into how many types? 4 metals. Right? Metals. यहाँ पर थोड़ा ये नॉन मेटल करते हैं. राइट? नॉन मेटल, metalloids, and last noble gases. Right? Clear? अगर कभी एग्जांपल आएगा मेटल का एग्जांपल, पोटेशियम पढ़ा होगा आपने, सोडियम पढ़ा होगा, सोडियम, कॉपर, राइट, गोल्ड, राइट, गोल्ड को AU लिखते हैं. आई एम राइटिंग सिंपल याद होना चाहिए. सिल्वर AG. Right? There are many. Aluminium, magnesium. Right? ऐसे आपका नॉन मेटल और गैसेस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. अब हाइड्रोजन का केस अलग है थोड़ा. ये क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, सल्फर,
phosphorus, there are many now, right? हाइड्रोजन का भी मैं केस बताता हूँ. हाइड्रोजन क्या है कि आपका देखो, लिसन, इन क्लास 10 इफ यू स्टडी हाइड्रोजन पार्ट, हाइड्रोजन बिहेव, देखो ये दिख रहा है मेटल्स. अब अगर इफ यू स्टडी पीरियड टेबल हाइड्रोजन की अभी पोजीशन फिक्स नहीं है. कहते हैं कि हाइड्रोजन इट बिहेव बोथ एज मेटल एंड नॉन मेटल. ये मेटल कुछ प्रॉपर्टी मेटल की शो कर रहा है, कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पर ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमियम इसकी शो करता है. तो हाइड्रोजन राइट इट इज नॉट फिक्स्ड. इसकी अभी भी पीरियड टेबल में क्या है, द पोजीशन इज नॉट फिक्स्ड. किसी बुक में ये बीच में दिखा देते हैं. गॉट इट? तो हाइड्रोजन का जब पीरियड टेबल बना था उसका कोई पोजीशन नहीं मिला तो उसको पहले नंबर पर रख दिया था. किसका एक तो एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास नंबर क्या है 1 है. ये इससे पहले आ गया था. नहीं बेटा, मेटलॉइड्स नहीं, ये सबकी तरह नहीं करता, ये खाली इसकी तरह बिहेव करता है. किसकी तरह? ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनकी तरह बिहेव करता है बस. जैसे ये फ्लोरीन करता है क्लोरीन, इनको बोलते हैं हेलोजन. हाँ, तो हाइड्रोजन बिहेव लाइक हेलोजन, नॉट ऑलवेज, सम टाइम. गॉट इट? और सम टाइम इट ऑलवेज बिहेव, आल्सो बिहेव लाइक, these are known as alkali. The first part is known as alkali. ये मेटल्स का पार्ट होता है, alkali होता है. It also behave like alkali. कि इनकी वैलेंसी भी 1 होती है, +1, और इनकी वैलेंसी -1 होती है. तो हाइड्रोजन आपके दोनों तरफ बिहेव करता है. तो इसलिए हाइड्रोजन की पोजीशन हमने फिक्स नहीं कर रखी है. इट्स क्लियर, राइट? अब नाउ नोबल गैसेस फर्स्ट. नोबल गैसेस में आपके सबसे पहले हीलियम, नियॉन, आर्गन, krypton, right? Xenon. These are your noble gases. Symbol, I am writing only symbol. And metalloids क्या होते हैं? Which behave both as metals and, right? जैसे आपके जर्मेनियम, right? Right? आर्सेनिक हो गया, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, right? ये क्या है? These are all your metalloids, right? We will study in detail, don't worry. इन सबको we will study in detail. Got it? This much here is clear, right? ठीक है. Now if you see some book, anti-metal, the anti-metal बेटा इसका we can say here, anti-metal मैंने सुना नहीं, आपने किसमें पढ़ा ये? एंटीमनी होगा, मुझे उसको बताना. एंटी मेटल की आई हैव नॉट स्टडी, मेरे इसके वर्ड ही नहीं आया मेरे पे. एंटी मेटल, अच्छा, तो राइट नाउ इसका कोई आइडिया नहीं है. आई विल चेक इट, डोंट वरी. हाँ, गॉट इट? ठीक है. हाँ, मैं एक चीज कहता कि इन सम बुक ना आपका ये दोनों एक ही पार्ट में रखते हैं. ठीक है, नॉन मेटल एंड नोबल गैसेस, कि दे आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ऑफ, राइट? ये राइट के साइड में थे नोबल गैसेस, इनको एक ही तरफ रखा हुआ इन्होंने नॉन मेटल्स में. गॉट इट? क्लियर? नाउ वी विल, राइट, फर्स्ट वी विल टेक मेटल्स. पहले मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं, राइट? मेटल्स, राइट? मेटल्स, राइट? मैंने आपको पहले भी बताया कि देयर आर हाउ मेनी 78% ऑफ पीरियड टेबल क्या होते हैं आपके? मेटल्स होते हैं. ठीक है. अब वी विल डू द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. विद प्रॉपर्टीज से आपको क्लियर रहेगा मेटल क्या होती है. द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज मेटल दे आर, ठीक है, मेटल दे आर मेलेबल. मेटल्स आर मेलेबल. मेटल्स क्या करते हैं हम? दे आर मेलेबल. इट मीन्स they can be drawn into sheets, drawn into sheet. आप इसकी शीट बना सकते हो. एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक एग्जांपल. बेस्ट एग्जांपल आपका एल्यूमिनियम है, राइट? एल्यूमिनियम तो वी हैव हर्ड एल्यूमिनियम, राइट? सपोज अ मेटल ऑफ एल्यूमिनियम, और आपने एल्यूमिनियम फॉइल देखा होगा फॉर रैपिंग योर फूड. एल्यूमिनियम फॉइल है, इट इज लाइक अ शीट. एक शीट है तो एल्यूमिनियम फॉइल, राइट? तो दे कैन ड्रॉन इनटू शीट बाय हैमरिंग या कुछ करके, राइट? आपने इस तरह के इसको बिल्कुल पतला कर दिया, आपने एक शीट बन गई आपकी.
सिमिलरली आयरन है, राइट, यू मेक अ शीट, इसकी शीट बना के आपने आयरन बॉक्स देखे होंगे, यू हैव सीन द आयरन बॉक्स हियर, राइट। तो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स की पहली प्रॉपर्टी कहती है मेटल्स आर मेलेबल, मेलेबल मीन्स दे कैन ड्रॉन इनटू शीट्स, दे कैन ड्रॉन इनटू शीट्स। एग्जांपल, अनदर एग्जांपल, आपने गोल्ड के देखे होंगे, गोल्ड की शीट हो जाएगी, सिल्वर की बन जाएगी, राइट। बेस्ट एग्जांपल आपका एल्यूमिनियम फॉइल का, आपका ये तो आप सबने देखा ही होगा, राइट। द फर्स्ट पार्ट इज क्लियर, राइट। वी विल डू बाय हैमरिंग, चाहे आपने हैमर किया या हैवी लोड इस पर डाला कि ये शीट बन जाएगी आपकी, राइट। नाउ द सेकंड पार्ट इज योर मेटल डक्टाइल, right, ductile means we can, right, make wires from it, right। हम क्या बना सकते हैं, we can make wire from metals। आपने कॉपर पढ़ा होगा, कॉपर वायर देखिए एट योर होम, ठीक है, कॉपर वायर सिंपल सी कॉपर वायर होती है आपकी, एल्यूमिनियम वायर, राइट। तो ये डक्टाइल द प्रॉपर्टीज फ्रॉम द मेटल वी कैन मेक वायर, क्लियर। यही आता है ड्रॉन इनटू शीट, ये ड्रॉन इनटू वायर, वी कैन ड्रॉ वायर फ्रॉम metals, right class, right, you have seen copper wire metals, right। Now third is most important, metals are good conductor of electricity and heat also, right, right। आपने देखा होगा आयरन है, Fe मीन्स आयरन होता है, ठीक है, आयरन, इसका सिंबल क्या होता है, द सिंबल इज Fe। यू नो, इफ यू हीट आयरन रॉड, सपोज ये एक बर्नर फ्लेम है, दिस आयरन रॉड, इसको हीट करोगे तो इट विल गेट हीटेड, यस नो, राइट। और आप you have done the you have learned about the process of conduction कि if you heat from here the whole iron rod get heated by, right, by the transfer of heat। जैसे अभी आपने घर पे देखा होगा when क्या फूड इज कुकिंग, जब आपका यूटेंसिल होता है, राइट, when food is cooked the whole utensil it is hot, it become hot, right, it means the metal it conduct it conduct heat also, right, heat। Similarly आपने सुना होगा, right, metals they are good conductor of electricity। metals में जितने भी all metals, right, iron, copper, silver, right, they conduct electricity, इनमें करंट आता है, right, conduct electricity। तभी तो at home we use copper wires, yes no, right। You know which one is the best metal which conduct electricity, best conductor, silver, right, silver, right, silver is your best conductor of heat and electricity, right class, it is best why we don't use silver, right, because of its cost, silver is very costly, right। next part, why do metals conduct electricity, जो metals हैं ये electricity क्यों conduct करते हैं, इसका जब आप आगे पढ़ोगे तो आपके कंडक्शन में क्या होता है कि ये आयंस बनाते हैं, दे फॉर्म, हैव यू हर्ड आयंस, हाँ, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये मूव करेंगे तो इट कैरीज, आपके कैरीज कर क्या, इलेक्ट्रिसिटी कैरी करते हैं, गॉट इट। जब ये कभी आप, हाँ, जैसे Na+ है, कभी आपने इस तरह पढ़ा होगा Na+, K+, देखा होगा आपने से, राइट, ये क्या होते हैं, राइट, या आयंस फॉर्म है, तो ये दे कैरीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये वर्ड है, राइट, ये नोट करना,
दे कैरी फ्री इलेक्ट्रॉन, इससे क्या होता है आपका, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। राइट क्लास? हाँ, एक्सेप्शन इज योर एक्सेप्ट मरकरी, ठीक है, इसका मरकरी हो गया। राइट, नाउ द फोर्थ वन इज योर मेटल्स, दे आर लस्ट्रस। राइट, हियर मेटल्स क्या होते हैं, लस्टर मीन्स शाइनी, मेटल्स दे आर लस्ट्रस। राइट, आपने गोल्ड देखा होगा, राइट, इज शाइन। राइट, गोल्ड है, सिल्वर है, सिल्वर, दे आर दे आर प्लेटिनियम हो गया, they shine, they have lustrous surface, so we say metals they are having lustrous surface। राइट, जैसे आपने सिल्वर देखा होगा, सिल्वर बहुत अच्छा चमकता है। राइट, सिल्वर की चमक काफी तेज है ना। नाउ नेक्स्ट इज योर मेटल्स, दे आर जनरली हार्ड। मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। राइट, आपने देखो क्यों, एक तो मॉलिक्यूल्स दे आर क्लोजली पैक्ड होते हैं मेटल्स में, सॉलिड टाइप, राइट, दे आर हार्ड होते हैं। राइट, लेकिन एक्सेप्ट सोडियम, राइट, वेरी गुड, सोडियम आता है, राइट, पोटेशियम, राइट, ये सॉफ्ट होते हैं। यू कैन कट दिस विद ब्लेड, इनको ब्लेड से काटते हो, यू कैन कट विद ब्लेड। और ये दोनों के दोनों क्या है, हाईली रिएक्टिव हैं। दीज आर हाईली रिएक्टिव इन एयर, आप ओपन में नहीं रख सकते। तो इनको कैसे स्टोर करते हैं, वी स्टोर्ड इन केरोसिन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, सोडियम एंड पोटेशियम दे आर स्टोर अंडर केरोसिन। अगर आपने सोडियम को उठा के, राइट, यू टेक इन एटमोस्फेयर, तो ये एक्सप्लोड करेगा, इट स्टार्ट बर्निंग। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वी स्टोर अंडर केरोसिन। अगर आप लैब में भी इसको करोगे, लैब में यू टेक अ बाउल, बाउल में केरोसिन एंड यू पुट इट हियर। राइट, केरोसिन में डिप रहता है आपका सोडियम एंड पोटेशियम। राइट क्लास? ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पूछा जाता है कि सोडियम एंड पोटेशियम, राइट, दे कैन बी कट विद ब्लेड या नाइफ से काटते हो, राइट, और दे आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन, दे आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन। राइट क्लास? ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज योर, नाउ फिफ्थ वन, metals are sonorous, metal are sonorous, sonorous means they produce sound। आपने खुद ही देखा होगा, स्कूल की बेल देखी होगी आपने, बेल है कि कोई आयरन रॉड है, राइट, वो अगर आयरन रॉड अगर नीचे गिर के तो आवाज आती है आपकी, राइट, तो इट प्रोड्यूसेस साउंड। व्हेन टू मेटल दे आर बीट टुगेदर, इट प्रोड्यूसेस साउंड। आपने सुना होगा, राइट? राइट क्लास? ठीक है, metals are solid generally at room temperature, solid at room temperature except mercury। क्वेश्चन इसी का आता है कम कि मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी क्या है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। गॉट इट? नेक्स्ट क्या है कि मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो, मेटल्स दे आर हार्ड, राइट, मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होंगे, तो राइट, इसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, दे आर टाइटली, दे आर द फोर्स इज वेरी ग्रेटर, राइट, फोर्स क्या होगी, फोर्स काफी ग्रेट होगी, तो अंदर की जो फोर्स ग्रेटर है, तो इसको तोड़ने में बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, काफी हार्ड होता है। राइट, गॉट इट क्लास? राइट, मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी, राइट, हाई होता है। मेटल्स दे आर हैविंग, तभी तो वो जल्दी से टूटा नहीं। आपने सुना होगा, कभी आपने सुना होगा आयरन रॉड को, आयरन, व्हेन यू बर्न आयरन रॉड,
इट मेल्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर. कभी देखा होगा आपने कि आयरन रॉड भी मेल्ट होती है, देखा है राइट. उसके लिए क्या चाहिए, वी नीड अ वेरी हाई टेम्परेचर, वी नीड अ हाई टेम्परेचर, राइट क्लास. ठीक है. अनदर इज योर मेटल्स, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. आपने पढ़ा होगा तो स्ट्रॉन्ग का तो वही हो गया ना, हार्ड हो गया. तो स्ट्रॉन्ग मीन्स इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि जो स्ट्रेंथ होती है मेटल्स के अंदर या आपस में जो होल्ड करने की मॉलिक्यूल्स की, वो काफी क्या होती है, हाई होती है, राइट. दे हैव अ हाई स्ट्रॉन्ग टेंसाइल. ये मान के चलो कि अंदर का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, अट्रैक्शन है, काफी हाई होता है, तो इसलिए दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट. एनी अदर हियर, और कौन सा लगे प्रॉब्लम. डेंसिटी, अब डेंसिटी हो गई, राइट. मेटल्स है, मॉलिक्यूल्स क्या है, दे आर क्लोजली पैक्ड, राइट. तो तो जहां पर आपके ज्यादा क्लोज होते हैं वहां पर डेंसिटी क्या होती है, ऑलवेज हाई, हाई होती है. तो मेटल डेंसिटी इज ऑलवेज हाई. दिस इज क्लियर, राइट. तो टुडे वी हैव डन अबाउट मेटल्स प्रॉपर्टीज. Yes, ma'am.